is a very important part of the Java. Okay, so a developer needs to develop a class or method which can return the various objects such as an integer, string and double. Okay, so it is a scenario that we have to find out. A developer needs to develop a class or method such as integer or string or double which can accept various number of value. मतलब यहाँ पर डेवलपर क्या बोल रहा है ना, ऐसा मैं एक क्लास बनाऊंगा जो किसी भी टाइप का इंटीजर वैल्यू शो करेगा, किसी भी टाइप का स्ट्रिंग वैल्यू शो करेगा और किसी भी टाइप का डबल वैल्यू आपको रिटर्न करेगा. So that is the work of a developer. Needs to develop a class or method which can return the various object. Integer भी हो सकता है, string भी हो सकता है और double भी हो सकता है. So that here we define to implement the functionality, a developer needs to create a generic class or method. So by using generic class or a method, you can access any type of variable, any type of function or any type of integer. वो इंटीजर वैल्यू हो सकता है, वो स्ट्रिंग वैल्यू हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप का वैल्यू ये आपको शो करेगा. इसमें आपका कोई बाउंड्री नहीं रहेगा. जैसे कि मैं INT डिफाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू वो मुझे रिटर्न करेगा, और मैं अगर स्ट्रिंग वैल्यू में यूज कर रहा हूँ तो वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा. तो जेनेरिक क्लास एक ऐसा क्लास है जो किसी भी टाइप का वैल्यू आपको रिटर्न कर सकता है. इट इज नॉट मैंडेट कि आपको सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. स्ट्रिंग लिखोगे तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इंटीजर लिखोगे तो इंटीजर रिटर्न करेगा. तो हियर यू कैन रिटर्न एनी टाइप ऑफ वैल्यू. टू इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी you can use the generic class and methods. Generic enable you to generalize class. So generic enable you to generalize class. In the declaration of generic class, the name of the class followed by a type parameter. Okay, name of the class followed by the type parameter. The type parameter section represented by the angular bracket. Type parameter section means it is used when you define a generic class. You can use a angular bracket, class name, then angular type parameter. Okay, so it is a declaration of generic class, the name of the class followed by a type parameter section, class name, then type parameter. तो पहला आपको क्या करना है ना, जेनरिक क्लास क्या है इसको लिखना है. तो आप एक हेडिंग दीजिए, what is generics in Java. तो कौन कहले What is generic class? First write what is generic class. Generic enable you to create a generalized class. छोटे
Generic enable you to create a generalized class which can return various objects such as integer, string, or double. Actually, generic is introduced in the year in the version of Java 5. Okay, so like write another point. It is introduced in Java 5 version. It is introduced in Java 5 version. Yes, sir. So like advantages of generic. First of all, Sir, advantages of generic product. advantages of generic. First point, type safety. टाइप सेफ्टी. टाइप सेफ्टी इसका मतलब मैं समझाता हूँ. जैसे कि हम एक डाटा टाइप को दूसरा डाटा टाइप में हम कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे क्या ना, कास्टिंग यूज करते थे. जैसे कि ऑब्जेक्ट कास्टिंग और डाटा टाइप कास्टिंग, यहाँ पर भी टाइप टाइप कास्टिंग यूज किया जाएगा. ओके, सो टाइप कास्टिंग वी कैन होल्ड ओनली. यहाँ पर आपको टाइप कास्टिंग का जरूरत नहीं है. ओके, क्योंकि आप ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाओगे जो डिफरेंट टाइप का वैल्यू आपको शो करेगा, इसको बोला जाता है टाइप कास्टिंग. तो फर्स्ट एडवांटेजेस राइट, टाइप सेफ्टी. ठीक है. ये गोटे ये गोटे ये गोटे ये गोटे जस्ट अ मिनट.
Okay, so next type, in type safety right, you can hold only single type of object in generic. Next advantages, second advantages, typecasting is not required. There is no need to convert one data type to the another data type. So next point is typecasting is not required. Then third point is compile time checking. There is a advantages of generic. Now in generic, first you have to define a generic class. Okay, तो generics जैसे कि हम exception handling पढ़ रहे थे, उसमें से क्या है ना, हम arithmetic exception पढ़ रहे थे, file not found exception पढ़ रहे थे, लेकिन हम arithmetic exception, file not found exception, इसको अगर हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आप एक्सेप्शन क्लास यूज करोगे, then you can handle all the type of exception. Then you can handle all the type of exception if you are using exception classes. If you are using exception classes, you can handle all the type of exception handling feature here. Now you can write here this one, the type parameter section. In the declaration of generic class, the name of the class followed by the type parameter section. नॉर्मली जब आप क्लास डिफाइन कर रहे थे, क्लास नेम आप यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्लास नेम, देन यहाँ पर टाइप पैरामीटर टी सेक्शन यूज किया जाएगा. टी फॉर टाइप. ओके, एंगुलर ब्रैकेट हम यूज करेंगे. तो इस तरह से अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये बोला जाएगा क्या ना, ये जेनेरिक क्लासेस बोला जाएगा. जेनेरिक क्लासेस मीन्स इट कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ वेरिएबल. That variable will take any type of value, or you can create a function which is store any type of function over there. Okay, देखो ये वाला लिखो, syntax of generic class and example, this one, ये वाला point, ये वाला point. Yes, sir. Next is that in the case you want to create a generic class, you have to use the two method. One is set method, another is get method. पब्लिक क्लास जेनेरिक डेमो, ये हो गया आपका जेनेरिक क्लास एग्जाम्पल. उसके बाद हम डिफाइन करेंगे प्राइवेट टी. तो इसको टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का काम क्या है? हम जब वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे थे, वहां पर क्या हो रहा था, लाइक हम डिफाइन कर रहे थे INT A
स्ट्रिंग बी, तो जब INT स्ट्रिंग ये सारा चीज आप डिफाइन कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, यू हैव टू क्रिएट द इंटीजर एंड स्ट्रिंग वैल्यू, INT एंड स्ट्रिंग वैल्यू ये डिफाइन कर रहे हो. दैट मीन्स व्हाट, you are giving the authority that you have to store only the string value, only the integer value. लेकिन यहाँ पर ऐसा वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं जिसका कोई डाटा टाइप ही नहीं है. प्राइवेट टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. स्मॉल टी कैन से इट इज अ वेरिएबल एंड कैपिटल टी कैन से इट इज अ डाटा टाइप. देन यहाँ पर यूज के हैं पब्लिक वॉइड सेट वैल्यू टी. जैसे कि कोई भी फंक्शन में हम पैरामीटर यूज कर रहे थे, INT ये स्ट्रिंग भी यूज कर रहे थे, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी. ये हो गया आपका मेंबर वेरिएबल, ये हो गया पैरामीटर वेरिएबल. मेंबर वेरिएबल एंड पैरामीटर वेरिएबल का नाम सेम है, तो दिस डॉट टी इज इक्वल टू टी. ये आपका सेट वैल्यू यूज किया गया. अभी हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे वहां से वैल्यू अगेन हम रिटर्न करेंगे. जब रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर अगेन हम यूज किया पब्लिक टी. देखो वॉइड के जगह पर टी यूज किया, गेट वैल्यू रिटर्न टी. जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो, जब हम गेट वैल्यू यूज करेंगे तो जो भी वेरिएबल का डाटा है वो आपको यहाँ पर रिटर्न करेगा. तो टी में कैसे हम वैल्यू स्टोर करेंगे, तो ये फंक्शन को कॉल करने के लिए जनरली जैसे हमको पता है हम क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे. जेनरिक क्लास डेमो, ये हो गया ऑब्जेक्ट, न्यू जेनरिक क्लास डेमो. लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक एंगुलर ब्रैकेट पास कर रहे हैं और इंटीजर डिफाइन किए. इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट से हम जो भी फंक्शन कॉल करेंगे तो इंटीजर वैल्यू ही हम पास करेंगे. तो इसलिए यहाँ पर रन टाइम में मतलब जब आप कंपाइल करते हो एट द रन टाइम व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट, तभी हम डिसाइड कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा या स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेगा. लेकिन जैसे कि हम पहले INT ये स्ट्रिंग बी हम डिफाइन कर रहे थे, ये नहीं किए हैं. तो मतलब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बकेट दे दिया, वो बकेट में आप पानी रखोगे और कोई दूसरा चीज रखोगे, डस्टबिन जैसा यूज करोगे, तो एट रन टाइम आप सिचुएशन के हिसाब से डिफाइन करोगे. तो बकेट में मैं पानी डालकर दे दूंगा, दैट मीन्स इट इज ओनली यूज फॉर वाटर. लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया, बकेट दे दिया, तो यू हैव टू डू एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पर जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर दिया वो जो फंक्शन को जो हम कॉल करेंगे वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही हम पास करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू. फिर उसी ऑब्जेक्ट में जब हम गेट वैल्यू करेंगे वो हमको 10 रिटर्न करेगा. देन जेनरिक क्लास डेमो, देन अगेन सेम फंक्शन है. देखो सेम फंक्शन है, लेकिन हमने यहाँ पर कोई इंटीजर कोई स्ट्रिंग डिफाइन नहीं किया, सिर्फ एक ही वेरिएबल हमने डिफाइन किया, स्ट्रिंग एस ऑब्जेक्ट न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू 10. तो यहाँ पर देखिए एक वही ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पर स्ट्रिंग यूज किए. वहां पर 10 हमने पास किया, जब 10 पास किया वो हो गया स्ट्रिंग वैल्यू. ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू करने से आपको जो नेक्स्ट वैल्यू है ये आपको शो करेगा. यहाँ पर सेट वैल्यू है और यहाँ पर हम गेट वैल्यू यूज किए. समझ में आया प्रोग्राम, और समझ में नहीं आया बोलिए, एनी डाउट? साक्षी, क्षितिज, प्रियंका, विश्वजीत नॉट देयर. प्रियंका यस सर. समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है, पूरा नहीं आया. देखिए ये मतलब ये जो जेनरिक है ना, ये ऐसा एक चीज है जैसे कि मैं आपको एक सपोज एक हॉल दे दिया, घर बना दिया, उसका पार्टीशन कुछ नहीं हुआ, एक हॉल दे दिया, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, तो आप इसको मैरिज का मंडप बनाओगे या बैंक का ऑफिस बनाओगे या कोई दूसरा भवन बनाओगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है.
जेनरिक ऐसा चीज है, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, देयर इज नो बाउंड्री ओवर देयर। मैं घर दे दूंगा तो आपको बोलूंगा वहां पर स्विमिंग पूल करना है तो नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको दे दूंगा, वहां पर आपको डिसाइड करना है आप यहाँ पर कौन सा ऑफिस बना सकते हो। जेनरिक उस तरह सा है, मतलब मैं ऐसा वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जो एट रन टाइम यू हैव टू डिसाइड आप उसमें कौन सा वैल्यू आप वहां पर दोगे। तो इसलिए हम यस यहाँ पर क्या किए, एक वेरिएबल डिफाइन किया। जैसे कि वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डाटा टाइप देन वेरिएबल नेम। ओके, लेकिन यहाँ पर डाटा टाइप के जगह पर हम कैपिटल टी यूज कर रहे हैं, वेरिएबल के जगह पर स्मॉल टी। इसको बोला जाता है टाइप पैरामीटर, जेनरिक। इसमें यस जनरल हो, मेरे पास कोई भी आ सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी इसको बोला जाता है। यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू। तो यस सर यहाँ पर दो फंक्शन यूज किया गया। पब्लिक वर्ड सेट वैल्यू नॉर्मल फंक्शन है, फंक्शन का पैरामीटर जैसे कि हम इंट स्ट्रिंग भी डिफाइन कर रहे थे। यहाँ पर कैपिटल टी फॉर डाटा टाइप, स्मॉल टी फॉर आपका हो गया वेरिएबल का नाम। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर आपका मेंबर वेरिएबल और पैरामीटर वेरिएबल का नाम सेम है, तो मेंबर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए दिस कीवर्ड यूज किया गया। यस सर तो यहाँ पर हम गेट वैल्यू यूज किए हैं। तो यहाँ पर जनरली देखो, जेनरिक क्लास डेमो इंटीजर ऑब्जेक्ट, न्यू जेनरिक क्लास डेमो इंटीजर, मतलब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट मदद से हम फंक्शन को कॉल किए। ऑब्जेक्ट की मदद से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सर रन टाइम हम बोल रहे हैं आप यहाँ पर कौन सा वैल्यू दोगे, तो हम रन टाइम में डिसाइड किए यहाँ पर हमको इंटीजर वैल्यू लेना है। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इंटीजर। इसका मतलब क्या है, आप रन टाइम में जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप इंटीजर वैल्यू ही, जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो वो इसको ट्रीट करेगा इंटीजर। लेकिन कंटेनर क्या है, सेम है। जैसे कि एक हाइवा, हाइवा में आप जो है सैंड वो ला सकते हो, ईट ला सकते हो घर बनाने के लिए, मतलब कंटेनर यस जैसे आप उसमें कुछ भी चीज ला सकते हो। तो मैंने जब सैंड लाऊंगा तो इसको बोला जाता है ट्री, ईट जब लाऊंगा तो वहां पर काउंटिंग होगा कितना ईट लाया। तो उस तरह से जिसके हिसाब से आप वैल्यू दोगे उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो मुझे इंटीजर वैल्यू देना है, तो जब ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पर डिफाइन कर दिया इंटीजर। फिर जब मैं दूसरा क्लास बना रहा हूँ, जेनरिक क्लास स्ट्रिंग बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने मेंशन कर दिया, जब मैं वैल्यू पास करूंगा वो स्ट्रिंग का वैल्यू होना है। ओके यस सर तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग का वैल्यू यहाँ पर पास किया 10। तो जब हम सेट वैल्यू कर रहे हैं तो वैल्यू जाकर स्टोर होगा, जब हम गेट वैल्यू कर रहे हैं वहां से वैल्यू आपका रिट्राई करके दिखाएगा। ओके यस सर ओके, सो इट इज फास्ट प्रोग्राम ऑफ जेनरिक क्लास। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में कल उसका आगे पढ़ाएंगे। ओके, थोड़ा टाइम में ज्वाइन करो। हाँ, 8 बजे से 8 बजे। सर ज्वाइन नहीं हो रहा था इसीलिए। अच्छा ठीक है। थैंक यू सर।